स्टूडेंट्स को स्टॉप करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड our next chapter is daisy chaining. Daisy chaining. In the last lecture, as we discussed about what is interrupt, what is the meaning of interrupt, and also we discussed about priority interrupt. Priority interrupt. As we know, there are number of devices which are attached with a computer. Okay? As we know, there are number of devices, input-output devices, which are attached with our computer, and they may request interrupt. They may request interrupt at the same time. One or more device can interrupt, send an interrupt request to the computer at the same time. Uh, then in that case, we use the concept of priority interrupt. Okay, as I told you, each and every device in the computer is assigned a priority. Is assigned a priority. Okay, uh, some peripheral devices have a low priority, few have higher priority. Okay, so it depends upon various parameters. Uh, on the basis of these parameters, we decide the priority of the peripheral devices. Okay, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस अटैच होती है, हर एक डिवाइस की अपनी प्रायोरिटी होती है. फॉर एग्जांपल हम स्पीड लेकर चलें, तो जिन डिवाइसेस की स्पीड ज्यादा है, तो वो क्या होगा, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्लो डिवाइसेस. Okay, so we will fulfill the request of a device which has the high priority. Okay, and after that we will execute the request of the device which has low priority. Okay, so priority ये assign करनी जरूरी है. For example, if only one device D1 will request to the computer for the interrupt, or you can say only device D1 want to transfer data with the computer. Okay, in that case, all the devices are available for D1 device, because only we have only one interrupt request, and as this request is occurred, जैसे ही ये request आएगी, we execute that request immediately. Okay, but at the if the situation is that at one time more than one devices request to the computer. Suppose D1, D2, both devices make a request, interrupt request to the computer for data transfer. Okay, तो हर एक डिवाइस की अपनी अपनी प्रायोरिटी होगी. अब दोनों डिवाइस है, दोनों की रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. क्लियर? तो for that purpose, as we know, each and every device assigned a priority, and on the basis of that priority, we will execute the request of that particular device first. For example, if D2 device, D1 and D2 device ने same time के ऊपर request किया, तो D2 device की जो priority वो ज़्यादा है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले D2 device की request को fulfill करेगा. जैसे इसकी कंप्लीट होगी, उसके बाद D1 डिवाइस की रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. ओके, एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी इंटरप्ट. तो डेजी चेनिंग is an example of priority interrupt. Daisy chaining is an example of priority interrupt. In daisy chaining, we have number of devices. And these devices are arranged in sequence, starting from the high priority, then low priority, and so on. नंबर ऑफ डिवाइसेस हम अटैच कर सकते हैं सीक्वेंस में, और हर एक और ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ दीज डिवाइसेस कैसे उनको अरेंज कैसे करना है. सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाली डिवाइस आएगी, फिर लो प्रायोरिटी, फिर लो प्रायोरिटी, फिर लो प्रायोरिटी एंड सो ऑन. ठीक है, और जिस डिवाइस की प्रायोरिटी हाई होगी वो सबसे पहले डिवाइस आएगी. जिस डिवाइस की प्रायोरिटी होगी वो नेक्स्ट डिवाइस होगी, उसके बाद लो प्रायोरिटी वाली एंड
सो इस तरह से हम नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं इन डेजी चेन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द priority interrupt. Okay, and what is the working of daisy chaining? Let's see. Okay, this is the diagram of daisy chaining. In this diagram, we are using three devices: device one, device two, device three, and so you can use number of devices. Okay, here we have interrupt request line, which is common to all the devices, and these devices are arranged, as I told you, in daisy chaining interrupt. We arrange our devices in sequence starting from the high priority device to the low priority device. Okay, in this diagram, we are using three devices: D1 device, D2 device, and device 3. And device 1 has highest priority, device 2 has low priority, device 3 has low priority. सबसे कम priority किसकी है? device 3 की है. ठीक है, सर ये कैसे? हमने अरेंज किया हुआ है इन डिवाइसेस को, हमने क्या किया हुआ है? अरेंज किया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम हाई प्रायोरिटी से यस स्टार्ट सर। करें. सपोज क्या है, डिवाइस 1 डिवाइस की हाई प्रायोरिटी होगी, डिवाइस 2 की लो प्रायोरिटी है, डिवाइस 3 की सभी कम प्रायोरिटी. यस सर। डिवाइस. Okay, all these devices are connected with a common interrupt request line. All these devices are connected with interrupt request, common interrupt request line. Okay, which is goes to the CPU. Okay, and all the devices make interrupt request through this interrupt request line. And CPU will acknowledge to the interrupt, and CPU will acknowledge to the interrupt through the interrupt acknowledge line. And जिस particular device ने request भेजी, suppose D1 D2 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी, तो वो सीपीयू के पास भी, सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट भेजी, मतलब उसको फुलफिल किया, उसको D2 डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट किया, और D2 डिवाइस ने क्या किया? वेक्टर्ड एड्रेस, वेक्टर्ड अपना वेक्टर्ड एड्रेस भेज दिया सीपीयू को. वेक्टर्ड एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर्ड एड्रेस? सर लास्ट लेक्चर वेक्टर। में मैंने बताया था. यस सर।
the device which Which interrupt also provide the vector branch address, also branch provide the branch address. branch address. जैसे D2 डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा सीपीयू को, सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी D2 डिवाइस को, तो D2 डिवाइस ने क्या, जैसे एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट की, उसने साथ में क्या कर दिया, एड्रेस भेज दिया जहां पर सीपीयू का कंट्रोल शिफ्ट होगा और वहां से क्या हो जाएगा, फिर इंटरप्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर डिवाइस सीपीयू को रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, फिर एड्रेस भी प्रोवाइड करेगी सीपीयू को जहां पर सीपीयू का कंट्रोल शिफ्ट होना है, ठीक है। तो एंड फ्रॉम दैट एड्रेस द सीपीयू विल एग्जीक्यूट द interrupt service routine. Okay. Okay. So in daisy chaining, we have three devices: D1, D2, and D3. These devices are arranged in descending order in the form of interrupt. Okay, starting from the highest priority interrupt, then low priority interrupt, then low priority interrupt, and all these devices are connected with a common interrupt request line, which goes to the CPU, and CPU will acknowledge to the device with interrupt acknowledgement. Okay, okay, and after that, that particular device which makes the interrupt request place its vectored address on the address line and provide it to the CPU, and after that CPU will shift our control to that particular address, and after that the CPU will execute interrupt service routine. कुछ नहीं है, सिंपल है। डिवाइस D1 डिवाइस ने इंटरप्ट सिग्नल भेजा थ्रू द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन टू द सीपीयू, सीपीयू ने क्या कर दिया, D1 डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट भेज देनी है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट भेज दी, जैसे ही D1 डिवाइस ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव की, इसने क्या करना, अपना एड्रेस जहां पर कंट्रोल शिफ्ट करवाना चाहता है डिवाइस, जो काम करना चाहता है, तो उस लोकेशन का एड्रेस दे देगा जहां पर इंटरप्ट स्टार्ट होगा, जहां से इंटरप्ट स्टार्ट होगा वो एड्रेस सीपीयू के पास चला जाएगा और सीपीयू का कंट्रोल क्या है, उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर चला जाएगा, एंड फ्रॉम दैट एड्रेस ऑनवर्ड द सीपीयू विल एग्जीक्यूट द इंटरप्ट। बट देखो इसमें क्या है, वी हैव 2 पॉइंट, वन इज पीआई एंड पीओ। पीआई इज प्रायोरिटी इनपुट and PO means priority out. PI means priority in, PI means priority in होती है, PI means priority in and PO means priority out. अब देखो क्या है, suppose if only one device make interrupt request, suppose D2 device will make the interrupt request to the CPU, तो through the interrupt request line D2 device ने क्या किया, interrupt signal भेज दिया CPU को, CPU ने acknowledgement भेज दी है, तो ये acknowledgement पहले किसके पास जाएगी, D1 device के पास जाएगी, किसके पास जाएगी, D1 device के पास जाएगी, and the control will check कि डिवाइस D1 डिवाइस ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी, क्या कहीं D1 डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है ना। ये कंट्रोल क्या करेगा, D1 डिवाइस को चेक करेगा कि D1 डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग तो नहीं है, अगर पेंडिंग नहीं है तो जो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर भेजी थी प्रायोरिटी इन में, तो ये डिवाइस D1 क्या करेगा, वही सेम एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा, 1 आया था यहाँ पर, डिवाइस 1 ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव की एज ए 1, ठीक है। डिवाइस 1 ने क्या करना, प्रायोरिटी आउट से 1 ही आउट करेगा, ये अगर इसने 1 एक्सेप्ट किया है ना, तो ये क्या करेगा, 1 ही आउट करेगा इफ देयर इज नो पेंडिंग इंटरप्ट ऑफ डिवाइस D1, तो ये एक्नॉलेजमेंट 1 जो है वो किसके पास चला जाएगी, D2 डिवाइस के पास चले जाएगी थ्रू PI, ठीक है, थ्रू PI प्रायोरिटी इनके थ्रू 1 D2 डिवाइस के पास मिल जाएगी। तो हमने क्या देखा था कि सिर्फ D2 डिवाइस ने, सपोज इन तीनों में से सिर्फ D2 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो D2 और किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी,
रिक्वेस्ट भेजी, सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट भेजी थ्रू द डिवाइस D1, वो एक्नॉलेजमेंट D2 के पास पहुंच गई। जैसे ही D2 डिवाइस ने एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव की, इसने क्या कर दिया, अपना वेक्टर एड्रेस लाइन के ऊपर रख दिया और वो एड्रेस सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया, और सीपीयू का कंट्रोल फिर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो था कि अगर सिर्फ एक डिवाइस ने रिक्वेस्ट की, ये क्लियर है इतना चीज? यस यस सर। ओके, इजी है। D2 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी, सीपीयू ने उसको एक्नॉलेजमेंट भेज दी थ्रू द D1, क्योंकि देखो ये सारी डिवाइसेस क्या है, अरेंज की हमने सीक्वेंस में, इसलिए सबसे पहले D1 के पास एक्नॉलेजमेंट जाएगी, फिर D2 के पास जाएगी, फिर D2 3 के पास जाएगी। अगर अब सेकंड केस देखते हैं, क्या सेकंड केस क्या है, इफ डिवाइस D2 एंड D3, डिवाइस D2 एंड D3 डिवाइस सेम टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देती हैं, जहां फिर आप ऐसे कह सकते हो कि D2 डिवाइस ने पहले रिक्वेस्ट भेजी सीपीयू को, ठीक है, तो कुछ ही टाइम के बाद डिवाइस D1 ने रिक्वेस्ट भेज दी सीपीयू को, ठीक है, मीन कि मान लो कि सपोज करो 1 सेकंड का ही डिफरेंस है। जैसे ही D1 ने रिक्वेस्ट भेजी, पीछे पीछे D1, जैसे ही D2 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी, पीछे पीछे D1 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी। और अब देखोगे आप, अगर देखो सबसे पहले D2 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी थी सीपीयू को, अब सीपीयू क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, सीपीयू विल सेंड एक्नॉलेजमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट सबसे पहले किसके पास जाएगी, D1 डिवाइस के पास जाएगी, ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई D1 डिवाइस के लिए। अब कंट्रोल क्या चेक करेगा, D1 डिवाइस को चेक करेगा किसी इसका इंटरप्ट पेंडिंग तो नहीं है, हाँ भाई इसने भी तो रिक्वेस्ट भेज दी थी साथ साथ में, है ना, यस सर। तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी लो है, तो सीपीयू क्या करेगा, ऑब्वियस है क्या करेगा, हाई प्रायोरिटी वाली डिवाइस की रिक्वेस्ट को क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा, एक्सेप्ट। यस सर। हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, तो ये पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो D1 डिवाइस, अब इसने भी रिक्वेस्ट भेजी थी, D2 ने भी भेजी थी, तो कंट्रोल क्या करेगा, डिवाइस 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट को क्या कर देगा, लॉक कर देगा, वो क्या कर देगा, यहाँ पर पीओ क्या कर देगा, 0 आउट कर देगा। इसने क्या की, D1 डिवाइस ने क्या की, एक्नॉलेजमेंट फॉर D2 डिवाइस को क्या कर दिया, इसमें ब्लॉक कर दिया, 1 लिया 0 आउटपुट करवा दिया, ठीक है, 1 लिया 0 आउटपुट करवा दिया। D1 डिवाइस ने क्या कर दी, एक्नॉलेजमेंट को ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया, बिकॉज D1 डिवाइस हैव हाई प्रायोरिटी एज कंपेयर टू D2, तो इस पहले D1 डिवाइस अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, उसके बाद D2 डिवाइस की रिक्वेस्ट को फुलफिल, तो D1 डिवाइस क्या करेगा, अपना वेक्टर एड्रेस लाइन के ऊपर रख देगा, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने क्या किया, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट किया, जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई इंटरप्ट की, तो जो इसने एक्नॉलेजमेंट ब्लॉक की थी, वो फिर क्या करेगा, 1 भेज देगा D2 डिवाइस, इसमें क्या हो जाएगा, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और D2 डिवाइस की एग्जीक्यूशन जो है, इंटरप्ट एग्जीक्यूशन जो है, वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट। ठीक यस है, सर। तो देखो कुछ भी नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार, जैसे सपोज करो इन तीनों में से एक डिवाइस ने ही रिक्वेस्ट भेजी, D2 ने भेजी टू द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन सीपीयू, सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, वो डिवाइस पहले एक्नॉलेजमेंट जाएगी डिवाइस 1 के पास, पीआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, कंट्रोल विल चेक दैट डिवाइस 1 की कहीं इंटरप्ट तो नहीं है, अगर तो नहीं इंटरप्ट है, तो डिवाइस 1 क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट 1 को ही बाहर आउट कर देगा, और डिवाइस जो है वो डिवाइस 1 क्या करेगा, 1 एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा D2 डिवाइस को। अब कंट्रोल चेक करना है कि डिवाइस D2 ने रिक्वेस्ट भेजी थी इंटरप्ट, हाँ भाई भेजी थी, ये क्या करेगा, पी की वैल्यू 1 कर देगा, और पी आप ओ की वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, है ना, यहीं पर एक्नॉलेजमेंट यहीं पर ब्लॉक हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी 1, आगे 0 हो जाएगी, तो 1 यहीं पर हो जाएगा, D2 डिवाइस क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, ठीक है, अपना वेक्टर एड्रेस सेंड कर देगा सीपीयू को, सीपीयू विल एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस, but if at the same time two devices make a request, interrupt request to the CPU,
then what we will do in that case, the priority the device which has high priority will execute first. Yeah. So for example, if D1 device and D2 device make an interrupt request at the same time to the CPU, CPU will send interrupt acknowledge signal, and that signal will goes to first device D1. Okay, it goes to device D1, and control will check if D1 device make a request or not, interrupt request or not. If device 1 make a request, then this device will block the acknowledgement to here, and device 1 will send its vectored address to the CPU, and CPU will execute the interrupt request of D1 device first. Okay, as the interrupt service routine of D1 device is completed, so this device D1 device will forward the blocked acknowledgement to the D2 device. Okay, and after that, as D2 device will receive is equal to 1 from EI, will place its vector address on the address line and send it to the CPU. And CPU will execute interrupt service routine from that address on. Okay, तो इस तरह से हमारा डेजी चेनिंग जो है वो क्या करता है, वो करता है। क्या होता है, जैसे दो डिवाइसेस है, तो अगर किसी एक ही ने रिक्वेस्ट भेजी है तो वो उसी की ही रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी। मोहम्मद आरिश अपना वो म्यूट करो आप। ओके, तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, हो जाएगा? यस सर। इसमें सर, हाँ जी, यस सर, हो जाएगा सर मेरा सर। और स्टूडेंट बाकी? डिवाइस यस सर। हाँ जी, और है किसी को शायद डाउट है, उसको है डाउट? सर डिवाइस 3 में नहीं जाएगा सर, मतलब ये फॉरवर्ड नहीं होता है। It depends on device, which device makes the request, interrupt request. अगर D1 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी नहीं है तो नहीं जाएगी इसके पास acknowledgement। अगर D1 सपोज में तीनों में से D3 डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो जो एक्नॉलेजमेंट है फ्रॉम थ्रू दैट डिवाइस D1, पहले इसके पास 1 होगी, फिर ये चेक करेगा इसने रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी है, ये क्या करेगा, प्रायोरिटी आउट से 1 ही आउट करवाएगा। फिर ये 1 जो है वो डिवाइस D2 के पास जाएगी, कंट्रोल चेक करेगा कहीं D2 डिवाइस ने रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी, अगर नहीं भेजी है प्रायोरिटी आउट से फिर से क्या जाएगा, 1 आउट जाएगा, और ये 1 कहां पर जाएगा, एक्नॉलेजमेंट कहां पर इसके पास जाएगी, डिवाइस D3 के पास जाएगी। सर डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। ने रिक्वेस्ट भेजी थी तो वो क्या करेगा, हाँ भाई इसने भेजी थी, तो ये डिवाइस क्या करेगा, अपना वेक्टर एड्रेस लाइन जो है सीपीयू को भेज देगा। सीपीयू क्या करेगा, from that particular address onward will execute the interrupt service. ओके सर, थैंक्स। यस सर। So this is about priority interrupt. Now the next thing is, next topic is very important topic, that is DMA. Okay students, the next topic is DMA.
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएमए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पेट है, वो आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेसिंग मोड्स हो गए जैसे इन कोल, सो वी हैव टोटल 10 एड्रेसिंग मोड्स जो हमने स्टडी किए थे, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लो भाई। चाहे देखो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2-3 नंबर का आएगा। अगर सब्जेक्टिव होता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में भी ये 4-5 नंबर के क्वेश्चन, तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी बन ही जाएगा। अगर मैं बात करूं डीएमए की, जो अभी हमने डिस्कस करना है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये सब्जेक्टिव आता है तो ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव में भी इसकी जो वेटेज है 2-3 मार्क्स की जो है वो रहेगी, ठीक है। ये फिक्स है, अब उसको मतलब लेकर चलो कि हाँ भाई इसको हमने करना ही करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट important topic is direct memory access, or DMA, direct memory access or DMA. Yeah. Okay, so we are studying about modes of transfer. Okay, हम यही टॉपिक कर रहे हैं ना, modes of transfer, and we see about that we have 3 types of mode. One is programmed mode, second is interrupt initiated mode, and third is DMA mode. And these 3 modes are used to transfer data between peripheral devices and memory. Okay, and remember one thing, data transfer is mostly between input output devices and memory. Okay, and in both the cases, in programmed input output and interrupt initiated data transfer, CPU is used as intermediate. CPU is used as intermediate between peripheral device and memory. This means if I want to transfer data from peripheral device to memory, firstly I will transfer data to CPU, and from CPU after that I will transfer data to the memory. Okay, this means a CPU act as a intermediator. CPU act as a intermediator in case of, in both the cases, programmed input output and interrupt initiated input output. Okay, तो इन दोनों केसेस में क्या है, CPU यूज होता है which act as intermediator, and in both the cases, firstly input output device will transfer data to CPU, and after that CPU will transfer data to the memory. Okay, this is the concept of programmed input output and interrupt initiated. In programmed input output, the CPU will continuously monitor to the CPU devices that when these devices are ready to transfer data. In that case, the CPU unnecessarily wastes its time. CPU क्या है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, either CPU input output devices is ready or not. Okay, and with this concept, CPU there is a wastage of time of the CPU. But to overcome this, we use interrupt initiated. In interrupt initiated concept, CPU will do its work as normal. Whenever the input output devices are ready to transfer data, input output devices send interrupt request to the CPU that
input output devices want to transfer data. Okay, in that case, CPU will stop its main program and will transfer the data that input output devices want transfer. Okay, so in both cases, the CPU act as intermediate, and in both the cases, firstly input output devices transfer data to the CPU, and after that CPU will transfer data to the memory. But this is a lengthy concept. This is a lengthy process to transfer data. क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट आ गया. अगर यही बात है कि मैं अगर आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लूँ, जब मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँ या फिर मैं पहले किसी और को मैसेज दूँ फिर आपको मैसेज मिले, है ना, उसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा और रूट भी ज्यादा वो फॉलो होगा, है ना. पहले किसी को मैसेज किया फिर उन्होंने आपको सेंड किया, है ना. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हमारा डेटा ट्रांसफर जो है वो फास्ट हो, we use DMA. This means direct memory access. In this case, input output devices will directly interact with memory without using CPU. With this, we can transfer data over fast. इस केस में क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी से इंटरेक्ट करेंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और डेटा भी हमारा फास्ट ट्रांसफर होगा. सीपीयू भी इंक्लूड नहीं हुआ, सीपीयू भी इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं हुआ. एंड ऑल द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय डीएमए कंट्रोलर. ओके, the data transfer between peripheral devices and memory is controlled by DMA controller. Okay, so let's start DMA. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो मैंने आपको बता दिया है कि what is the concept of DMA. In direct memory access, peripheral devices directly interact with memory without using CPU. CPU को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना. And in this case, peripheral devices in DMA we use two signals basically, जिनका दो काम मेन जो है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दो सिग्नल्स जो है, वैसे तो बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो डीएमए में यूज होते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, ये दो सिग्नल्स बहुत बार पूछे गए हैं. एक होता है बस रिक्वेस्ट, एक होता है बस ग्राउंड. बस रिक्वेस्ट, सेकंड है बस ग्राउंड. तो डीएमए क्या होता है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, क्यों हम यूज करते हैं डीएमए? यस और नो? यस स्टूडेंट्स, यस और नो, क्लियर है? यस सर. लगता सो जाते हो आप, हैं खाना खुना खाकर इस टाइम. तो ठीक है, बस रिक्वेस्ट, बी आर बस रिक्वेस्ट, बी ई मींस बस ग्राम. In case of DMA, firstly the DMA controller will send bus request to the CPU. Bus request to the CPU. इसका मतलब क्या है कि CPU जो है वो एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल लाइन का जो कंट्रोल है, बेसिकली एड्रेस बस और डेटा बस होती है. एड्रेस बस और डेटा बस का जो कंट्रोल है वो क्या करते हैं, छोड़. बस रिक्वेस्ट सिग्नल का क्या मतलब है, दिस सिग्नल इज टू द सीपीयू. ये सिग्नल किसको जाता है, सीपीयू को जाता है. कौन इसको भेजता है, डीएमए कंट्रोलर. जब हमने डेटा ट्रांसफर करना होता है, जब हमने क्या करना होता है, डेटा ट्रांसफर करना होता है. देखो
बेसिकली होता क्या है, whenever we transfer data by using DMA, input output devices send request to the DMA controller. DMA controller that they want to transfer data. After receiving the DMA request signal from input output device, DMA controller send bus request signal to the CPU. Bus request signal to the CPU. इसका मतलब क्या है कि CPU buses का कंट्रोल छोड़ रिलीज. After receiving this signal from CPU will release the control of buses. और उसके लिए क्या करेगा, ये DMA कंट्रोलर को बस ग्रांट सिग्नल भेजेगा. The CPU will send bus grant signal to the DMA controller. इसका मतलब बस ग्रांट सिग्नल का मतलब क्या है कि CPU ने बसेस का कंट्रोल छोड़ दिया है. CPU ने क्या किया, बसेस का कंट्रोल छोड़ दिया है. तो DMA कंट्रोलर क्या करेगा, फिर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट भेज देगा. DMA एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, DMA एक्नॉलेज सिग्नल. जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस DMA एक्नॉलेज सिग्नल रिसीव करेगी, आफ्टर दैट CPU उसमें CPU बीच में हट जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट करेंगी डेटा ट्रांसफर करने के. Yeah, this is the whole process how to transfer data by using DMA. Firstly, peripheral devices send a request to the CPU DMA controller for the purpose of transferring data. The DMA controller will send the bus request signal to the CPU. This signal means CPU will release the control of buses, and in response to BR signal, CPU will send BG signal, bus grant signal, to the DMA controller. This means CPU has released the control of the buses. As DMA controller receives this signal, BG signal, DMA controller sent the DMA acknowledgement signal to the input output devices. After receiving the DMA acknowledge signal, input output devices directly interact with map and start the data transfer. Okay, तो ये हो गया बस रिक्वेस्ट सिग्नल क्या होता है, बस ग्रांट सिग्नल क्या होता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए. एक क्वेश्चन ये बन गया 2 नंबर का, अगर सब्जेक्टिव होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीआर सिग्नल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीजी सिग्नल, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर. मोड्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर मोड्स ऑफ डीएमए. ट्रांसफर मोड्स ऑफ डीएमए. उससे पहले ये डायग्राम देखो, छोटी सी डायग्राम है इंट्रोडक्शन वाली. सीपीयू को क्या बस रिक्वेस्ट आई, सीपीयू ने क्या भेज दिया, बस ग्रांट भेज दिया. बस रिक्वेस्ट आई सीपीयू को, वो बसेस छोड़ दे. ये हमारी होगी एड्रेस बस, ये डेटा बस, ये रीड सिग्नल, ये राइट. ठीक है, बस रिक्वेस्ट सिग्नल सीपीयू को आया कि वो बसेस का कंट्रोल छोड़ दे. ठीक है, बसेस का कंट्रोल क्या करते, छोड़ दे. जैसे ही बसेस का कंट्रोल छोड़ेगा, सीपीयू बस ग्रांट सिग्नल भेज देगा डीएमए कंट्रोलर. ओके, ये एक बेसिक डायग्राम. in DMA we have total 3 diagrams. Now transfer modes of DMA.
we have two types. We have two types of mode of DMA. First is burst mode. First, data transfer mode. Second is cycle stealing mode. Burst mode and cycle stealing mode. देखो, in burst mode, we transfer number of words at one time. We transfer number of words at one time. In cycle stealing mode, we transfer one byte at a time. We transfer one byte at a time. Suppose करो हमने क्या किया कि by using input और हम cycle stealing mode use करके हम data transfer करना चाहते हैं. तो input output device क्या करेगी? Input output device send request to the DMA request. अब ये सिग्नल्स देखो क्या क्या कौन कौन सा सिग्नल्स यूज होते हैं. फर्स्टली क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगी डीएमए कंट्रोलर को. डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, बस रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा सीपीयू को. सीपीयू क्या करेगी, सिग्नल भेज देगी डीएमए कंट्रोलर को बस ग्रांट का. ठीक है. एंड डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगा इनपुट और आउटपुट को. जैसे ही इनपुट आउटपुट ने एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिसीव किया, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी मेमोरी के साथ और आपस में क्या करेगी, डेटा ट्रांसफर करेगी. और ये साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होगा, ये सिर्फ एक ही बाइट ट्रांसफर करेगी, वन बाइट और वन वर्ड ट्रांसफर करेगी साइकिल स्टीलिंग. और ये सारे सिग्नल्स एक्सचेंज. जैसे ही एक बाइट और एक वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल बस इसका कंट्रोल फिर से किसके पास चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा. सपोज अगर हमने एक और बाइट ट्रांसफर कर दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये सारे सिग्नल्स क्या करने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने पड़ेंगे सेकंड बाइट ट्रांसफर करने के लिए इन केस ऑफ साइकिल स्टीलिंग मोड. बट इन केस ऑफ बर्स्ट मोड we only one time exchange all the signals and take the control of buses and transfer number of bytes at a time. In burst केस में क्या होगा, बस्ट मोड में क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक बार ही ये सारा एक्सचेंज करेंगे और नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो डेटा ट्रांसफर कर सकते. ये नहीं है कि एक बाइट ट्रांसफर की फिर कंट्रोल बसेस का सीपीयू को दे दिया, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट बाइट ट्रांसफर करनी है, फिर हम सीपीयू से कंट्रोल लेंगे. नो, हमने क्या किया, सीपीयू से बसेस का कंट्रोल एक बार लिया, हमने सपोज करो 10 बाइट्स ट्रांसफर करनी थी, हमने 10 की 10 बाइट्स ट्रांसफर कर, वो हो कर पाएंगे बर्स्ट मोड से. और ये बर्स्ट मोड का भी यूज होता है जब हमारे जहां पर हमारी स्पीड ज्यादा फास्ट हो, वहां पर बर्स्ट मोड यूज होता है. जहां पर डिवाइस और डिवाइस की जो स्पीड स्लो होती है वहां पर हम क्या करते हैं, साइकिल स्टीलिंग मोड यूज करते हैं. ठीक है. तो these are the modes of data transfer. These are the Yes, modes of DMA. yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ जी, बाकी स्टूडेंट भी बोल दिया करो. तमन्ना है, तमन्ना, राधिका. सर बूस्ट मोड थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा. यस सर. क्लियर है सबको? Yes, sir. इजी है, बहुत इजी है. Yes, sir. चलो, तो अब हम करते हैं डीएमए कंट्रोलर. डीएमए कंट्रोलर विच कंट्रोल ऑल दी प्रोसीजर. जो जितना भी है डीएमए डेटा ट्रांसफर. देखो अब हम हमारा ऑब्वियस हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी के बीच में हो रहा है. बट इसको कंट्रोल करने के लिए, पूरे प्रोसीजर को कंट्रोल करने के लिए डेटा ट्रांसफर को, वी नीड डीएमए कंट्रोलर. हमें क्या चाहिए होता है, डीएमए कंट्रोलर चाहिए. ओके. तो मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ, इसी से हम करते हैं.
This is the diagram of DMA controller. Okay, in this diagram we have control logic and various registers. Okay, we have address register, word count register, and control register, and control logic, which has various signals. For example, DMA select DS, register select RS, read signal for the purpose of reading the data, write signal for the purpose of write operation, bus request signal, bus grant signal, and interrupt signal. Okay, and this is a data bus buffer which contains data bus, and this is address bus buffer. मतलब कि कितनी हम address lines use करें, कितनी data lines use करें, वो यहाँ पर हमारी information. Okay, अब देखो address register. What is the function of address register? Now, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेटा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में है. सपोज करो हमने क्या करना है, मेमोरी से डेटा रीड करना है. हमने क्या करना है, मेमोरी से डेटा रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो फॉर दैट पर्पस वी नीड अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी वांट टू रीड फ्रॉम मेमोरी. ठीक है ना, पता चला मैंने क्या बोला? We need a memory location where we want to read data from memory. या मेमोरी से किस लोकेशन से डेटा रीड करना चाहते हैं, वो एड्रेस कहां पर होगा? एड्रेस रजिस्टर. कहां पर होगा? एड्रेस रजिस्टर. नेक्स्ट है वर्ड काउंट रजिस्टर. हाउ मेनी बाइट्स वी वांट टू ट्रांसफर, हाउ मेनी बाइट्स वी वांट टू ट्रांसफर, that number will store in word count register. Suppose if we want to transfer 50 bytes and the value of word count register will be equal to 50. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50. मतलब 50 bytes हम ट्रांसफर करते हैं. एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है बाय 1. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, पहले मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन से डेटा रीड किया, फिर हमने क्या किया 50 बाइट्स हमने टोटल रीड करनी है मेमोरी से. ये मेमोरी की लोकेशन फर्स्ट लोकेशन यहाँ पर आ गई 1. तो हमने क्या किया, फर्स्ट लोकेशन से मेमोरी रीड किया, फर्स्ट बाइट रीड कर लिया, वर्ड काउंट की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो जाएगी 49. एंड द कंट्रोल विल चेक वर्ड काउंट रजिस्टर. Is it 0 or no? Is it 0 or no? अगर तुझे 0 नहीं है तो सेकंड मेमोरी लोकेशन से क्या करेंगे, सेकंड बाइट रीड कर लेंगे. इसका मतलब क्या है कि एड्रेस रजिस्टर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, और वर्ड काउंट रजिस्टर क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1. तो ये डिक्रीमेंट होते होते 50 से जब सारे वर्ड्स रीड हो जाएंगे मेमोरी से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. एंड द कंट्रोल विल चेक वर्ड काउंट. If it is 0, this means our data successfully transferred. हमने क्या किया? सक्सेसफुली मेमोरी से डाटा जो है वो रीड कर दिया है. कंट्रोल रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स which specify particular operation. तो ये क्या बताएगा? ये कंट्रोलर ये बता सकता है हमें कि हमने मोड कौन सा यूज करना है. सपोज करो हमने साइकिल स्लिंग मोड यूज करना है या फिर बर्स्ट मोड यूज करना है, कौन सा मोड यूज करना है उसके रिगार्डिंग हो जाएगा. रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जो है? कंट्रोल रजिस्टर. ठीक है. अब इस साइड आओ कंट्रोल लॉजिक. इन कंट्रोल लॉजिक द फर्स्ट सिग्नल इज DS, मींस DMA select signal. DMA select signal. अगर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है थ्रू द DMA, तो ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ेगा? DMA को सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो CPU क्या करेगा? DS सिग्नल को हाई कर देगा. DS सिग्नल को क्या कर देगा? हाई कर देगा. DMA सिलेक्ट हो जाएगा. RS register select means obvious है, if we are selecting DMA and all the registers of DMA, obviously we will select also these register. तो ये RS सिग्नल को भी क्या कर देगा? हाई कर देगा. मींस DMA और DMA select and register select signal, ये दोनों को CPU क्या कर देगा? हाई कर देगा for the purpose of selecting the DMA. Next,
रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेशन वी विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर signal, read or write. And next signal is bus request. As I told you what is bus request, bus grant क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये इंटरप्ट है। अब देखो जैसे ही हमारा डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, as our data transfer is completed, DMA controller will send interrupt signal to the CPU। वो क्या करेगा, CPU को इंटरप्ट सिग्नल भेज देगा। अब CPU तो इसमें इंक्लूड नहीं है, CPU अपना काम करी जा रहा है, कुछ और काम कर रहा है ना। तो CPU को कैसे पता चलेगा कि अभी डेटा ट्रांसफर इनपुट आउटपुट मेमोरी के बीच में ट्रांसफर खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे इसके ऊपर छोड़ दिया है, जैसे ही ये अपना काम खत्म कर ले ये CPU को इन्फॉर्म कर। एंड एज the data transfer is completed, the DMA controller will send the interrupt signal to the CPU that our data transfer is completed successfully। जैसे ही डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया तो बस कंट्रोलर क्या करेगा, बसेस का कंट्रोल फिर से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और वो कंट्रोल फिर किसके पास चला जाएगा, फिर से CPU के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, CPU के पास चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीएमए कंट्रोलर। कैसे ये सारा कुछ वो कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। वेरी क्लियर है, इसमें कुछ नहीं पता चला तो पूछ लो। यस, रिपीट कर दो सर एक बार। और कुछ और देखो, कुछ भी नहीं है डीएमए कंट्रोलर में। देखो क्या क्या कंपोनेंट्स। एक होता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर किस पर्पस के लिए यूज होता है, जहां पर हमने जहां से मेमोरी से डेट, देखो अब मेमोरी रीड करनी है, डाटा रीड करना है या फिर राइट करना है, वो हम मेमोरी से करेंगे। मेमोरी से किस लोकेशन के, कुछ लोकेशन से रीड करना स्टार्ट करना है, जहां किस लोकेशन के ऊपर हमने ऑनवर्ड राइट करना स्टार्ट करना है, जहां मेमोरी की किस लोकेशन से ऑनवर्ड रीड करना स्टार्ट करना है, वो लोकेशन मेमोरी रजिस्टर में आ जाएगी। कितने बाइट्स डेटा ट्रांसफर करना है, वो वर्ड काउंट रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। कंट्रोल रजिस्टर में क्या होगा, कंट्रोल वर्ड होता है, कंट्रोल वर्ड होता है। उसमें हमने पूरा पूरा स्पेसिफाई किया होगा कि हम ये वाला साइकिल स्टीलिंग मोड यूज करेंगे और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। इन द फॉर्म ऑफ बिट्स वो कैसे करते हैं, वो हमारा ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का काम है, उसमें हम कंट्रोल वर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ही आप समझ लो, कंट्रोल रजिस्टर का काम क्या होता है, इट कंटेन्स कंट्रोल वर्ड which instruct the computer to perform particular operation, that we will use cycle stealing mode or we will read the data from memory। तो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो हमने परफॉर्म करनी है कंट्रोलर रजिस्टर में। एड्रेस बफर, डेटा बफर which specify the address lines and address lines, and this is control logic, and in control logic we have number of signals. One is DMA select signal. Obvious, yeah, if we want to transfer data between peripheral device and memory, we have to select the DMA chip। DMA chip को select करने के लिए हमें क्या है, DMA select signal होता है। ये CPU इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। रजिस्टर select, जो रजिस्टर्स हमने यूज करने हैं DMA कंट्रोलर के वो भी select होने चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, रजिस्टर select सिग्नल को एक्टिव कर दिया। सपोज अगर डीएमए सेलेक्ट नहीं होता है तो सीपीयू पता क्या करता है, फिर सीपीयू यूज करता है इन रजिस्टर्स को परफॉर्मिंग पर एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सीपीयू यूज करता है। अगर डीएमए सेलेक्ट हो गया तो फिर डीएमए को यूज करेगा। देन रीड ऑपरेशन मींस either we want to read the data from memory, हम मेमोरी से डेटा रीड करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। राइट ऑपरेशन परफॉर्म राइट ऑपरेशन स्टोर करने के लिए। बस रिक्वेस्ट सिग्नल सीपीयू को जाता है, इस पर्पस के लिए जाता है कि सीपीयू बसेस का कंट्रोल छोड़ दे। जैसे ही सीपीयू बसेस का कंट्रोल छोड़ता है तो वो क्या करता है, बस ग्रांट सिग्नल भेज देता है कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर क्या करता है, फिर क्या करता है, वो बसेस का कंट्रोल ले लेता है एंड देन स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टार्ट द
transfer of information. As the information, as the data transfer is completed, जैसे ही data transfer हमारा complete हो जाता है, कंट्रोलर क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल भेज देता है सीपीयू कि हमारा डाटा ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो सीपीयू एक्सक्यूज मी सर, बसेस का कंट्रोल ले। सर हाँ जी सर वो मैंने पूछना था सर, वो यूजर नेम और पासवर्ड का आप बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा सर, उसका कुछ हुआ सर? वो पीटी पोर्टल के। ये क्लियर है इतना? ठीक है, इसको एक बार पढ़ देना। हेलो सर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, जो पीटीयू का पोर्टल है ना आपका, वो एक्चुअली पता है क्या है? मैं पहले तो पोल कर रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या था कौन सा सर? वो डीएमए डिफर्स फ्रॉम इंटरप्ट मोड। क्या हो सकता है? क्या है? सर कुछ भी नहीं लग रहा था हैं? सर, सभी तो सेम आ रहे थे, दोनों की प्रॉपर्टीज है दोनों। अच्छा, सर वो भी डाटा ट्रांसफर करता है, दूसरा भी डाटा ट्रांसफर। सर दोनों सिमिलर थे। मैं भेज दूंगा इसका आंसर। सर क्या है इसका आंसर? मैं तो भेज दूंगा आपको इसका आंसर, देख लेना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस अब आ सर, रही है? अब आ रही है। यस सर। लास्ट वाली ऑप्शन ही आएगी। सर डी आना था ना हाँ सर, क्योंकि बाकी दोनों में सिमिलरिटीज हैं, हाँ, डिफरेंस। डेटा ट्रांसफर एक्सेसिंग मेथड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसर फॉर द ऑपरेशन। सर सेकंड पोल का आंसर सेकंड बोल सेकंड का का क्या था? सेकंड डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट डायग्राम करते हैं हम इसकी। डीएमए ट्रांसफर, देखो अब अगर क्वेश्चन आएगा ना वो अलग अलग तरह से आ सकता है। जहां तो वो आएगा व्हाट डू यू मीन बाय, वैसे इन जनरल में बात कर रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट, ओ सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए। तो आपने डीएमए की डेफिनेशन बतानी है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इट डायरेक्टली इंटरप्ट विद पेरिफेरल, देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइस एंड मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। ये बहुत जरूरी लाइन लिखनी है, विदाउट यूजिंग सीपीयू। अगर आपने सीधा लिख दिया ना कि डीएमए यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन पेरिफेरल डिवाइस एंड मेमोरी, बस ये गलत है। डेटा ट्रांसफर तो फिर ऐसे पेरिफेरल मेमोरी के बीच में प्रोग्राम्ड इंटरप्ट इनिशिएटिव से भी होता था, बट इन दिस केस यू हैव टू राइट दैट लाइन विदाउट यूजिंग सीपीयू, विदाउट यूजिंग सीपीयू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात हमने डेटा ट्रांसफर है वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया ना, सारा कुछ वो डायग्राम वही है, कुछ भी नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मोड्स। तो आपने ये डेफिनेशन बतानी है। और एक जो पहले डायग्राम की थी ना, छोटी सी डायग्राम सीपीयू जिसमें बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट सिग्नल आ रहे थे, एड्रेस बस, डाटा बस, रीड राइट सिग्नल, वो डायग्राम करते हैं 2 नंबर पे। और इसके दोनों के दोनों मोड्स बताने, बर्स्ट मोड एंड साइकिल स्टीलिंग क्या होता है, ये हो गया। फिर इसके अलावा क्या है कि अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन डीएमए कंट्रोलर, बस वो आपने ये वाली जो डायग्राम अभी हमने की वो वाले एक्सप्लेन करनी है। या वो पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए, एक्सप्लेन डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर एक्सप्लेन करना होगा आपको, पहले उसकी डेफिनेशन देनी होगी, फिर डीएमए कंट्रोलर एक्सप्लेन करना होगा।
बेटा कि कई बार पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए, एक्सप्लेन डेटा ट्रांसफर बाय यूजिंग डीएमए। उसके उसके लिए ये वाली डायग्राम आप क्या करोगे, ड्रा करोगे। ठीक है, ये डायग्राम है वही है जो हमने अभी सारा कुछ कर लिया है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देगा, सिग्नल बाय सिग्नल कैसे कैसे सिग्नल चल रहे हैं। सबसे पहले ना फर्स्टली we have input output devices, DMA controller, CPU and memory. Firstly, input output device will send DMA request to DMA controller by using the DMA request signal. ये सिग्नल है DMA request signal, ये सिग्नल है जो input output device send करेगा किसको, DMA controller. Firstly, first step is input output device will send DMA request to DMA controller. As DMA controller receive DMA request signal, DMA controller will send CPU bus request, will send bus request signal. Bus request signal. Bus request signal CPU DMA controller क्या करेगा, CPU को bus request signal भेज देगा. And in response to bus request signal, CPU will send bus grant signal to the DMA controller. To the DMA controller. As the DMA controller receive bus grant signal, DMA controller will send DMA acknowledgement to the input output device. DMA acknowledgement. इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी से डायरेक्टली क्या कर सकती है, अब इंटरेक्ट कर सकती हैं और ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। क्या ये आपस में क्या करेंगी, डेटा ट्रांसफर। अब इसके साथ और भी सिग्नल्स हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेना। हाँ, और जैसे ही एज द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट, DMA controller will send interrupt request to the CPU. Interrupt request to the CPU. This means data transfer by using DMA is completed and CPU will take the control of the buses. ठीक है, ये चीज है। बस बाकी सिग्नल्स है वो आपको मैं बता दूं, रीड राइट के सिग्नल्स है वो।
अब क्या है कि देखो, जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा डीएमए कंट्रोलर को, डीएमए कंट्रोलर ने क्या किया, बस रिक्वेस्ट सिग्नल भेज दिया सीपीयू को, सीपीयू ने भेज दिया बस ग्रांट सिग्नल भेज दिया डीएमए कंट्रोलर को। जैसे ही डीएमए कंट्रोलर बस ग्रांट सिग्नल रिसीव करेगी, ये क्या करेगा, डीएमए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सारा का सारा जो है वो इसके बीच में से आउट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगी, डेटा ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही डेटा ट्रांसफर दोनों में कंप्लीट हो जाएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा सीपीयू, फिर से क्या करे, बसेस का जो एड्रेस बस डेटा बस जो है उनका कंट्रोल फिर से वापस ले लेगा। ठीक है, तो बस यही डायग्राम है डेटा डीएमए ट्रांसफर। ये डीएमए ट्रांसफर है, पहले थी डीएमए कंट्रोलर, ये कौन सी डायग्राम है, डीएमए ट्रांसफर। जो पूछा जाए एग्जाम में वही आपने डायग्राम ड्रा करनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं ड्रा करते। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लो आप मुझे। वैसे ऑलरेडी ये सारा कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, क्या है फिर से बता दिया मैंने। यस, क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट डीएमए। तो डीएमए में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ सारा कुछ। इन डीएमए direct memory access, in this input output device and memory directly interact with each other to transfer data without using CPU. In this we use DMA controller which take care of all the data transfer. Okay. In this we have two signals. One is bus request signal which is sent to the CPU by the DMA controller, that CPU will release the control of the buses. In response to the bus request signal, CPU generate bus grant signal to the DMA controller that CPU has released all the control of the buses. And after that, DMA controller send the acknowledgement to the input output device that input output can interact. Now input output can interact directly with memory to transfer data. In DMA we have two modes. One is burst mode. In this we transfer number of bytes at one time. मतलब कि एक बार ही हमें सारे सिग्नल्स जो है वो एक्सचेंज करने पड़ते हैं, तो ऑन नंबर ऑफ डिवाइस जो वो बाइट्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, बट second mode is cycle stealing mode. In this we can transfer one byte at a time. This means एक बार हमने क्या किया, सिग्नल एक्सचेंज किया, वन बाइट एक बार बस इसका कंट्रोल लिया, वन बाइट ट्रांसफर किया, फिर से कंट्रोल सीपीयू को दे दिया। नाउ next time if we want to transfer another byte, for that we take again the control of the buses from the CPU and then we transfer the information in case of cycle stealing. Okay, in DMA controller we have various types of register. For example, थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं कौन-कौन से। For example, address register. Address register means the register. In this register we have memory address from where we want to read data or from where we want to write data onward. This means in address register we have memory address, जहाँ से हमने मेमोरी से डेटा जहाँ तो रीड करना स्टार्ट करना है, जहाँ फिर राइट करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट we have word count register. Word count register. Word count register. In this register we have a number of bytes that we want to transfer. If we want to transfer 50 bytes, so this means word count register set to 50. And after transferring each byte, the value of word count register decreases by 1. And address register, the value of address register increases by 1. Okay, and this is all about DMA
what is DMA, DMA controller and DMA transfer. इसमें कोई डाउट है? नहीं पता चला तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यस, क्लियर है? CPU क्या करता है? CPU will send the instruction to IOP processor to check the status of IOP. जैसे ही IOP ये रिसीव करता है, IOP will send its status to the CPU. जो भी इसका स्टेटस है, फ्री है, बिजी है, ये क्या है स्टेटस है, वो स्टेटस क्या है, CPU के पास जाएगा, ठीक है? एंड ये जो अपना स्टेटस है ना, वो मेमोरी में स्टोर करता है। तो CPU will access the memory to read the status of the IOP. IOP का स्टेटस रीड करने के लिए CPU मेमोरी को रेफर करेगा जहां पर इसने स्टोर किया है, ठीक है? तो CPU will access the memory to read the status of IOP processor. Okay, and after that, if okay means if status okay means if IOP processor is free, IOP processor is not busy with any other device for transferring data, then if okay, then start if the status of IOP is okay, if the status of IOP is okay, means अगर IOP free है, then CPU send input output instruction to the IOP. CPU send input output instruction to the IOP. मतलब input output operation send कर देगा IOP. इनपुट आउटपुट मींस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होगी, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगी, ठीक है ना? तो वो क्या कर देगा, सीपीयू उसको बता देगा, सेंड कर देगा आईओपी। तो आईओपी क्या करेगा, मेमोरी को एक्सेस करेगा। वो इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शंस भेजी ना, स्टार्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, वो मेमोरी में सीपीयू ने रखी है, वो इसको बता देगा। ये क्या करेगा, मेमोरी को एक्सेस करेगा और इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के लिए, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये क्या करेगा, आईओपी क्या करेगा, वो वाले इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करेगा, ठीक है? और आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, ये आपस में डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा और सीपीयू उसके बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा, कंडक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर using DMA.
सबसे पहले क्या किया, सीपीयू ने आईओपी को इंस्ट्रक्शन सेंड की, इसका स्टेटस चेक करने के लिए। आईओपी ने क्या किया, अपना स्टेटस जो है वो मेमोरी में स्टोर कर दिया। द आईओपी विल send its status to memory. CPU will access the memory to check the status of IO. If the status is okay, then CPU will send the start input output instructions to the IO. तो ये डायरेक्टली IO की भी भेजेगी। Start input output instruction will store in memory and the IOP will access the memory for input output program. जो इसने सेंड की ना start input output instructions, उसको एक्सेस करने के लिए आईओपी मेमोरी को एक्सेस करेगा। एंड आफ्टर दैट इनपुट आउटपुट प्रोग्राम मिल गया जिससे हमने डेटा ट्रांसफर करना है। आफ्टर दैट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर विल स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी बाय यूजिंग डीएमए को यूज करके वो अपना डाटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होगी तो आईओपी क्या करेगा, स्टेटस रिपोर्ट बना लेगा। स्टेटस बता देगा क्या स्टेटस है कि डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कहेगा कि रिपोर्ट जो है वो बनाएगा। एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ट्रांसफर कंप्लीटेड, जैसे इसकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएगा द आईओपी विल इंटरप्ट टू द सीपीयू। आईओपी इंटरप्ट टू द सीपीयू। आईओपी जो है वो क्या करेगा, सीपीयू को इंटरप्ट कर देगा। क्या इंटरप्ट करेगा, उसने डेटा ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट कर दिया, डेटा ट्रांसफर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो सीपीयू को जैसे ही इसका यस यस सर क्लियर है। तो ये क्या है, जैसे ही इसको स्टेटस पर ये इंटरप्ट करेगा तो सीपीयू क्या करेगा फिर आईओपी को, मुझे स्टेटस भेजो अपना कि डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ है या कोई एरर तो नहीं आई है, क्या है। तो ये क्या करेगा, आईओपी अपना स्टेटस जो है वो मेमोरी को सेंड कर देगा। क्या सीपीयू क्या कर रहा है, स्टेटस सेंड कर देगा। स्टेटस में क्या भेजेगा ये कि हाँ जी भाई सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफर हो गया। सीपीयू स्टेटस चेक करेगा और स्टेटस चेक करने के बाद सीपीयू अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को फिर से कंटिन्यू करेगा। इस टाइप से इसको एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट हो नहीं पता चले तो पूछ लेना, ठीक है ना। इजी है। सीपीयू ने पहले रिक्वेस्ट भेजी आईओपी को अपना स्टेटस भेजो, इसने अपना स्टेटस मेमोरी में स्टोर कर दिया। सीपीयू ने मेमोरी को एक्सेस किया एंड रीड द स्टेटस ऑफ आईओपी। आईओपी का स्टेटस रीड किया, या अगर तो स्टेटस ओके है तो ये क्या करेगा, स्टार्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सेंड कर देगा आईओपी को, वो मेमोरी में स्टोर करेगा। ये मेमोरी में होगा सारा कुछ इंस्ट्रक्शन। आईओपी विल एक्सेस मेमोरी फॉर द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर accessing the input output program from memory, it initiates the transfer of information between peripheral device and memory by using DMA. And as information is completed, as the transfer is completed, IOP send the interrupt signal to the CPU. As the CPU receive interrupt signal, it also send a request to the IOP processor that send your status, send the status। वो status भेजे उसको कि क्या status है, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट है या अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, एरर तो नहीं आई कहीं कुछ। तो आफ्टर देन इन द लास्ट IOP will send its status to the CPU। वो status कहाँ पर चला जाएगा, CPU के पास चला जाएगा, ठीक है जी। This is all about input output processor। कोई डाउट है, नहीं पता चला तो पूछ लो। With this your unit 3 of your syllabus is completed। ठीक है, बहुत आराम से हमने किया, ये नहीं है कि हमने फास्ट किया है, बहुत आराम से हमने सारे टॉपिक्स किए हैं। वहाँ एक एक टॉपिक हमने आराम से किया है। फिर भी कोई डाउट है, नहीं पता चलता है तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है ये, अब कोई डाउट तो नहीं है? यस सर क्लियर है। लास्ट कॉल करके बताओ, अभी पता चल जाएगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
इसके बाद हमारा एक टॉपिक